Hopefully, the slides are visible to you and I am audible to you. If someone reply, then I will start the lecture. Okay, thank you. And this time I will mark attendance online. Means the same time. So I have many PCs in my office. I will run the CMS on another PC, and I will call attendance like physical classes, and then I will mark the attendance as per the response from you people. Just I'm turning on the CMS. It's 1 hour class online, and this is start. Okay. Okay. Just after a few minutes, I will mark attendance. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. This is selection number 25. And this is in continuation with the TRR time we discussed in the last lecture. TRR is basically the reverse recovery time of the diode. We have taken example of the diode and we discussed about the TRR time, but such things are available, such things exist for all kinds of the devices, especially the semiconductor devices. So the example we set the diode and we study the TR and similar things you need to study for the transistors and other semiconductor devices and the advanced devices. Okay, so we discussed about the TR time and we know that TR time is not a good thing for device. If more the TR time, then I have skipped something. I must need to explain that also to you because 24. Yes, one last thing I did not discuss with you in the last lecture about the TR time. So I just have to refresh this to you. F5. Okay. So we discussed these things and we know that the TR time is the reverse recovery time. And it is not a good sign for a diode because it can, why it is not good thing, because we want, it is my intention to turn this device on at this point, but it is not getting turn, sorry, my intention is to turn off this device at this point, but it takes this time to stop. So this is just the wastage of the time, and the more important is the wastage of the energy. The losses in this, it will be very high. So it's not a good thing for any device. So what we should do, we should minimize this thing. The scientists and the engineers, they tried to minimize this time. What time? What is this time from this crossover to the settlement of the 0 amperes? So this time, the scientists and engineers, they try to minimize this one, and then they developed a special design, and based on it, it was also the PN junctions, but they developed a special design, and based on that design, the changes in the geometry of the semiconductor lattice structure or some design, and then succeeded to get to achieve the device which has very low TR time.
as compared to the general purpose diode. So there are two types of diode. This such diodes are known as the general purpose diode, and this is the special diode that is designed to reduce the TR time. So here the TR time can be nanosecond, and here can be TR time can be microsecond, general purpose. But normally nowadays the design, because of the latest technology, the TR time is generally very less for the diode. It can be in the range of nanosecond. Okay, even the general purpose diode, but you must have to consult the data sheet. Okay, so the special purpose diode is a fast. This is known as fast recovery diodes. I did not say about this thing in the last lecture. So remember, general purpose diode and the fast recovery diodes. So fast recovery diode is better than this one because it has TR time less than this one. We continue. अभी आ रही तो slide share new again, I think. Okay. Then stop इसको मैं okay. Hopefully, the screen is visible to you. Lecture 25, concern of the TR time. So last time we studied about the operation and the principle by which the TR time exists. Now the concern of the TR time is it, as we said before, this is not a good sign for a diode for a quality material. It's not a good thing. So we must have to minimize this thing, or we can remove this thing from the diode. Then we can end up with a very good quality of the diode. So concern of the TR time and its effect on circuit operation. So what is this means? Let's suppose this everyone should be attentive. Okay, and this is important topic. So let's take an example. आपने क्या किया? आप मार्केट गए, मार्केट जाकर के आपने एक डायोड उठा लिया, ठीक है, एंड यू परचेज डायोड. और जब आपने घर पे आकर के उस डायोड की जो डेटा शीट देखा आपने, सो लेट्स सपोज इस डायोड की जो डेटा शीट है वो इट सेज दैट if a newly purchased diode whose TRR is 5 microsecond, is of course it's very less, is used in the construction of a power rectifier from AC source operating at 50 Hz. तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक डायोड खरीदा मार्केट से, और इस डायोड की जो TRR वैल्यू है 5 माइक्रोसेकंड है, और मैं इस डायोड से एक रेक्टिफायर सर्किट बनाना चाह रहा हूं. And these are and that rectifier circuits की जो input supply है वो कितनी है, is having 50 hertz. I mean it's wall outlet. So इस wall outlet से आप probably you want to make a rectifier. So and you want to use this diode, these diodes which has 5 microsecond. So and you want to operate this in a frequency, the supply of 50 hertz. अगर आप 50 हर्ट्ज सप्लाई इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है जो सप्लाई की जो साइनोसॉइडल वोल्टेज है उसकी जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 20 मिली सेकेंड, राइट. 20 मिली सेकेंड का मतलब क्या हो गया? इन दिस केस डायोड्स रिमेन्स ऑन और ऑफ इक्वल टू 10 मिली सेकेंड. 20 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, और 10 मिली सेकेंड ऑन रहेगा, 10 मिली सेकेंड ऑफ रहेगा. दिस डायोड हैज TRR is equal to 5 microsecond, so it will completely stop after 5 microsecond. What does it mean here? कि वैसे तो ये जो टाइम पीरियड है 20 मिली सेकेंड है, तो ऑफ कोर्स डायोड हाफ ऑफ द टाइम के लिए ऑन रहेगा, हाफ ऑफ द टाइम के लिए ऑफ होगा. लेकिन ऑफ वो because of this TRR it will not immediately turn off, but it will
it will take 5 microseconds to completely stop. Okay, ये बात हो गई. So this we want to show you here कि ये on time 10 millisecond है, off time 10 millisecond है. लेकिन in actual because the diode has 5 microsecond, so on time 10 millisecond है. 10 millisecond के बाद जब ये off हुआ है, so it will not immediately off, but it will take 5 microsecond. But even though the off time is approximately 10 millisecond, because if you compare this 5 microsecond with this 10 microsecond, so this 5 microsecond is ignorable. So in such case, this TR is very less than the off time and the on time of the diode. So we can simply, because it will have very less effect, हम इसे ignore कर देंगे. What will happen? So T on is equal to 10 millisecond, T on, and T off is equal to, if you want to be very accurate, for the scientist, if you want to become a scientist, then T off will be कितना हो जाएगा? 10 minus 5 microsecond. So it will be 9.995 millisecond. That we can approximate to 10 milliseconds. So there is no significant effect of the TRR time on the operation of this circuit, because this circuit is going to operate at 50 hertz, and if you build the rectifier, it will work fine. There will be no significant issue. The circuit will work fine. Okay. Now if we want to place this diode in a chopper circuit or in a DC-DC converters or the inverters, so it means, okay, here it means almost no effect of TR on the circuit. If the same diode is used in the DC-DC converter at 50 kilohertz, then T is equal to 1 by F 50 kilohertz 30 microsecond. अब क्या होगा? चूंकि हम इस डायोड को 50 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे यूज कर रहे हैं, तो 50 किलोहर्ट्ज का मतलब ये हो गया, ये टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 20 माइक्रोसेकंड. And then this will be 10 microsecond, and this will be 10 microsecond. Okay, so this is your new graph. Then because the time period is 20 microsecond, so half is on, half is off. But if we take into account the TRR time, so TRR time already said that it is 5 microsecond. So 10 microsecond तो on रहेगा. अब इसके बाद ये 10 माइक्रोसेकंड तक इसे ऑफ होना है, लेकिन इट विल नॉट इमीडिएटली टर्न ऑफ, बल्कि क्या होगा? इट विल remain turn on for this TRR time, which is 5 microsecond. So it will remain on for the 5 microsecond, and then इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें वो ऑफ होगा. सो कितना टाइम बच रहा है? तो okay, so because it was supposed to be off for the time duration of 10 microsecond, but ये on रहेगा 5 microsecond के लिए, तो सिर्फ ये जो completely off होगा वो 5 microsecond के लिए off होगा. तो अब आप इस पे कमेंट्स करें, is it a good thing? No, it is not a good thing, क्योंकि आपके पास, आप तो इसे 10 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ रखना चाह रहे हैं, लेकिन due to this effect, due to the concern of the TRR or due to the side effect of the TRR, ये इसे 10 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ नहीं रखेगा, बल्कि सिर्फ 5 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ रहेगा. So that means it's not a good design, and probably it will not function well for some digital circuits or some control circuits. So this is a bad design. Okay, so what is the conclusion? Conclusion ये है कि ये जो डायोड आप मार्केट से खरीद के लाए हैं, जिसकी TRR time 5 microsecond है, it can work well for the low frequencies, but if you take this diode to design a converter that works with this much frequency, it is not good design. It will not work. So it means the TRR time is basically causing the limitations of the operation of the circuits in respect to the frequency. So it's a limitation of the circuit. The TRR time does not allow you
to operate at higher frequency. Hope you understand. Now, if frequency is further increased, अब आप देखें एक और आप funny चीज देखें. If the frequency, it's not a funny thing, it's a real thing. And अगर आप कुछ अपने senior से या कुछ अपने colleague से discuss करेंगे तो without knowing these things, जब भी कभी वो linear transformer बनाना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर यूज किया, ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया, 7805, 7812, 7824, कोई भी आपने आईसी, लीनियर आईसी यूज करके आउटपुट आपने 5 वोल्ट निकालेंगे, 12 वोल्ट निकालेंगे, 24 वोल्ट निकालेंगे, 48 वोल्ट निकाल देंगे, प्लस माइनस निकाल देंगे. उस लीनियर डिजाइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्ली none of the component will burn out, everything will work fine. But the same student or same your colleague, if they start to approach towards the DC-DC converters or towards the operation of the circuit at higher frequency, so at lower frequency they will not face anything, but soon if they increase the frequency, the circuit will start to red hot, circuit will start to fume. Immediately the circuit will try to angry with you. What you are doing, mister? You are operating me at this high frequency. I'm not capable of this high frequency. So they will damage themselves. Okay. So now further, if frequency is further increased to 100 kilohertz, अब suppose 100 kilohertz, then okay, I leave this to you. And now after getting the attendance, I will discuss with you. I'm not going to describe this. So now it's time for the attendance. Attendance के लिए मुझे क्या करना है? मुझे तो यहाँ कॉल करनी है ना बस, और क्या करना है? Okay. So it's time for the attendance. Please sponsor me. Mujibur Rahman. Present. Thank you. Mubashir Azad. Mubashir Azad, please reply. Okay, you are marked as absent. Saad Khan. साद खान एब्सेंट. 2 दफा मैं कॉल करूंगा क्योंकि इंटरनेट की वजह से बात. कौन नाम बताए ना? साद खान. साद कौन? हेलो हेलो साद खान. ओके. सीरत बतूल. सीरत बतूल. आगा नतीजे दे दीजिए. प्रेजेंट सर. कौन प्रेजेंट? आगा नबील. नाम बताएं. सीरत बतूल. नहीं ठीक, इसके बाद किसने बोला वो नाम बताएं. आगा नबील. आगा नबील प्रेजेंट है? जी सर. ओके ओके, थैंक यू. फवादुल हसन. प्रेजेंट सर. थैंक यू. मैंने मार्क एब्सेंट, सॉरी. प्रेजेंट सर. सैयद वलीद. मोहम्मद जहाजेब. प्रेजेंट सर. सैयदा उरूबा. प्रेजेंट सर. सैयदा उरूबा. प्रेजेंट सर. फहद मुख्तार. प्रेजेंट. सैफ. लगता है फहद मुख्तार आप सो नहीं रहे, बाकी सबकी आवाज बड़ी बड़ी आहिस्ते से आ रही है. ओके. सैफ हुसैन. प्रेजेंट सर. थैंक यू. अदनान खालिद. प्रेजेंट सर. गुड. हिमायू अरशद. प्रेजेंट सर. ओके फाइन. हसन अली शाहिद. हसन अली शाहिद एब्सेंट. नईम अहमद जलाली खानजादा. नईम अहमद जलाली खानजादा. ओके, ही इज एब्सेंट. औसाफ अली खान. प्रेजेंट सर. औसाफ अली खान प्रेजेंट है? प्रेजेंट. यस सर, प्रेजेंट. ओके, गुड. फजील राजा. ये प्रेजेंट होंगे इंशाल्लाह. फजील राजा. ओके जी, फजील राजा बोले.
Okay, he is absent. Okay, Shahzad Ahmad Khan, Present, sir. Kashif Nazir, Nazir, Kashif, Kashif Nazir, Ibad Ahmad Mufti, Hafiz Muhammad Hamza, Present, sir. Hafiz Muhammad Hamza present है. Yes, sir. Present. Hamza Rizwan, Mohammad Rizwan, present. हाँ sorry, I made mistake. Muhammad Rizwan. Okay, Romez Ali, Present, sir. thank you. Muhammad Mursaleen, Wajahat Ali, ये कैसी है अटेंडेंस है यार? वजाहत अली बोलो हाँ या ना? वजाहत अली, उमर खान, Present, sir. मोहम्मद वफास जाहिद, Present, sir. हारिस महमूद, Present, sir. असद बट, निहाल अहमद, Present, sir. निहाल अहमद प्रेजेंट है? Yes, sir. ओके, ठीक है. मोहम्मद मुताहर 126. कौन लो? Hasib Rauf Abbasi. Present, sir. Thank you. So the absentees are for today's class: Mubashira Zaid, Saad Khan. अगर ये लोग आ गए हैं तो साद खान प्रेजेंट है. मैं अभी कर देता हूँ प्रेजेंट आपको. ओके, the absentees are Mubashira Zaid और इसके बाद हसन अली शाहिद, नईम अहमद जलाली खानजादा, ये सब एब्सेंट है. मोहम्मद फजील राजा और काशिफ नज़ीर, इबाद अहमद मुफ्ती, मोहम्मद मुरसलीन, वजाहत अली, असद बट, मोहम्मद मुताहिर, ये लोग एब्सेंट हैं. And now I save this. So from today and next, I will take admission. Oh, sorry, I will take attendance similar to this one. Okay, now it's time for the question answer. कैसे क्वेश्चन आंसर करूं यार मैं? Okay, so what happens? कोई आप में से कोई बताएगा कि ये हमने अब तक ये चीजें स्टडी की हैं और we have seen that TR time is going to destroy the circuit operation. तो आपको आप में से ये बताएगा कि अब क्या होगा अगर हमने पहले फ्रीक्वेंसी 50 से 50 हर्ट्ज से 50 किलोहर्ट्ज किया and now we move to 100 kilohertz. What will happen for this frequency? If anyone from you can reply me. सर इससे ये होगा कि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा और फिर सर ये है कि उससे जो सर्किट है वो बर्न आउट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होके हमारे पास जो डिवाइस है वो उसके कैपेबल नहीं होगी कि वो इतना ज़्यादा मतलब जो है वो झेल सके. Yes, you're right. कि देखें यहाँ पर ये देखें कि इस 100 किलोहर्ट्ज पे पॉइंटर 100 किलोहर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड 10 माइक्रोसेकंड है. एंड टाइम पीरियड 10 माइक्रोसेकंड का मतलब ये हुआ वी वांट टू turn the diode on for
हाफ ऑफ द टाइम 10 माइक्रोसेकंड का मतलब कितना हो गया, 5 माइक्रोसेकंड के लिए मैं इसे ऑन रखना चाहता हूँ, और ऑफ कोर्स आई वांट टू मेक इट टर्न ऑफ फॉर द नेक्स्ट 5 माइक्रोसेकंड, बट ड्यू टू दिस टाइम TRR टाइम, जब आपने यहाँ इसे स्टॉप किया और अब आपकी इंटेंशन ये है, हमजा सानी भी किस, तो आप ये चाहते हैं कि ये ऑफ हो जाए, लेकिन ये कंप्लीटली इस पूरे टाइम पीरियड के लिए, जिस पूरे टाइम पीरियड के लिए आप इसे ऑफ करना चाहते हैं, उस पूरे टाइम पीरियड के लिए ये ऑन रहेगा। मीन्स इसके थ्रू करंट फ्लो होता रहेगा, और जब ये ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाफ टाइम के लिए भी ऑन है, और नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम जिसमें मैं ऑफ करना चाहता हूँ उस पे भी वो ऑन ही रहेगा। इसका मतलब है कि जब मैं ऑफ करना चाहता हूँ तो वो ऑन रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि द ट्रांजिस्टर द डायोड विल रिमेन कंटिन्यूअसली ऑन विदाउट एनी स्टॉप। जैसे ये ऑन है, इसके बाद फौरन दूसरी ऑन, सॉरी यहाँ तक तो ये ऑन है, 5 माइक्रोसेकंड गुजर गए, इसके बाद फिर ये नेक्स्ट 5 माइक्रोसेकंड आ जाएगा जिस पे तुम्हें ऑलरेडी डायोड को ऑन होना है, तो ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। दैट विल लीड, जैसे आपने बताया, दैट विल लीड टू कंप्लीटली बर्न, और इट विल मेक शॉर्ट सर्किट, एंड immediately the circuit will blown। ठीक है, that's good। अच्छा, now we move to the importance of the TRR time and its effect on circuit operation. It is noted that at high frequency when diode was to be, ये क्या चीज है? Okay, this is just repetition of the ये okay, मैं ख्याल में okay, this is continuation। Okay, it is noted that at high frequency when diode was to be off, but it remains continue on, which leads to the destruction of the circuit, complete destruction। मेरे पास अभी अगर हम लोग फिजिकल क्लास ले रहे होते हैं तो शायद उसमें मैं आपको एक छोटी सी सर्किट बनाकर बताता कि कैसे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस कंडीशन में। ओके, the diodes or semiconductor devices TRL time is very critical। I should not write important, you know, important in terms, important का लफ्ज इस बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता है। I should not write importance। So TRR is concerned in respect to the operating frequency। Therefore, to solve such problems, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमने what they did, हमने क्या किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? they design based on new geometry or new compositions of the material, they design new diodes, और उस डायोड का उन्होंने इस तरह डिजाइन किया है कि उनकी जो TRR वैल्यू है वो कम हो गई है। पहले ये TRR वैल्यू ज्यादा थी, फॉर एग्जांपल if it was 5 microsecond, probably it is 1 microsecond। so of course, तो अब जब TRR की वैल्यू 1 microsecond कर देंगे तो probably it will work for up to some 5 or 10 kilohertz तक ये fine, it will work। Therefore, to solve such problems, fast recovery diodes and Schottky diodes were developed। So what is fast? This is known as general purpose diode. This is known as fast recovery time diode। So this is also special diode, and the next diode is a Schottky diode। अब आप ये देखें, what is the difference? ये जनरल में TRR ज्यादा है, साहब बात है। स्पेशल में, फास्ट में TRR की वैल्यू कम रखी गई है। It can you can increase some frequency, but up to some limit. You cannot increase the frequency from some specific point beyond that specific point। Yeah, but you can maintain higher frequency than this one for this diode। Okay, what is then? Okay, so we have series of diodes, general purpose power diodes। You should know the definition। These are the PN junction diodes। मैंने ये आपको बता दिया definition, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। You need to make the notes। Fast recovery diodes, fast recovery, they are specially designed PN junction diodes। So they are still PN junction diode, which works on different principle compared to the general purpose diode। They have low TRR, less than 5 microsecond। I will say is also less than nowadays because of the high the advancement in the technology। I should say is less than 1 microsecond।
So they are used in high-speed converters. These diodes are used to handle hundreds of amps and voltage up to 3 kilovolt. This values, I think it's a book value. So because book is written 5 years or 10 years or 20 years before, so we should avoid to write these values, क्योंकि जो लेटेस्ट है वो शायद इससे भी ज्यादा होंगे. ठीक है. Hope you understand. Now the next diode is the Schottky diode. Schottky diode is different with this PN junction diode. PN junction diode में P type material इस्तेमाल हो रहा है और N type material इस्तेमाल हो रहा है. अच्छा, इससे पहले मैंने जो पहली स्लाइड जो लास्ट टाइम मैंने जो स्लाइड से मैंने आपको बताया था कि रीजन फॉर द रिकवरी टाइम. Can anyone answer me what is the reason for the recovery time? Why the recovery time exists? मुजीबुर रहमान. यस सर. आप बता सकते हैं मुजीबुर रहमान के ये रिकवरी टाइम क्यों होता है मटेरियल में? टीआरआर रिकवरी टाइम से जी, टीआरआर रिकवरी टाइम. जी जी सर, ये अगर हम देखा जाए जिस तरह ये जनरल पर्पस डायोड होते हैं, जब वो फॉरवर्ड करंट उसमें फ्लो करते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करते हैं. बिल्कुल सही है. लेकिन जब हम डायोड को जब रिवर्स बायस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर की थ्रू करते हैं और वो रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं. वो तब तक ये करंट फ्लो करते हैं जब तक कि वो रिकॉम्बिनेशन ना कर ले उस अपोजिट कैरियर से. That is ये right. That is right. That is right. Good. अच्छा, इसमें थोड़ी सी मुजीबुर रहमान में थोड़ी सी आई थिंक आई शुड मेक सम करेक्शन कि रिवर्स हम नहीं कर रहे होते हैं, हम इसको स्टॉप कर रहे होते हैं. डायोड ऑन है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस है, करंट उससे फ्लो हो रहा है. अब मैंने डायोड से जो फॉरवर्ड बायस की जो वोल्टेज है ना वो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, वो मैंने रिमूव कर दिया. अब डायोड को मैं रिवर्स बायस नहीं कर रहा, मैंने डायोड के वोल्टेज रिमूव कर दिए. तो अब मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंने यार वोल्टेज रिमूव कर दिया, इट शुड स्टॉप. लेकिन ये स्टॉप क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर मिनॉरिटी चार्जेस भी होते हैं, मिनॉरिटी कैरियर्स होते हैं. वो मिनॉरिटी कैरियर्स स्टिल मूव हो रहे होते हैं और वो जब आपस में जिस तरह आपने बताया कंबाइन हो जाएंगे तो फिर वो स्टॉप होंगे. तो वो जो मिनॉरिटी चार्ज, चूंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल में पी टाइप मटेरियल ले रहे हैं, अगर हमने पी टाइप मटेरियल लिया है तो उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्जेस हैं. और माइक आप बंद करते हैं प्लीज, मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. हाँ, तो चूंकि अब मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ शायद. जो पीएन जंक्शन डायोड में जैसे पी टाइप मटेरियल है, इसमें होल्स आपके मेजॉरिटी चार्जेस हैं, मिनॉरिटी कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. दूसरे साइड में पी एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस आर द मेजॉरिटी कैरियर्स. और इसके अंदर माइनॉरिटी जो होते हैं वो आपके पास होल्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फॉरवर्ड बायस दे रहे होते हैं तो दोनों के मेजॉरिटी चार्जेस और माइनॉरिटी चार्जेस दोनों के फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है. जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायस रिमूव कर दिया तो अब वो ज़ाहिर है मेजॉरिटी कैरियर तो स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं वो स्टिल कंटिन्यू. तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, इसकी वजह से करंट नेगेटिव में फ्लो होगा और वो उस वक्त तक फ्लो रहेगा जब तक ये जो मिनॉरिटी चार्जेस हैं ये अपने अपोजिट चार्जेस से रिकम्बाइन नहीं हो जाए. जब ये रिकम्बाइन हो जाएंगे तो फिर ये करंट जीरो हो जाता है. ओके, थैंक यू फॉर योर गुड आंसर. तो अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शॉर्टकी जो जर्मन साइंटिस्ट था, इन्वेंटर था, वॉल्टर एच शॉर्टकी आई थिंक. तो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, ये जो पी टाइप मटेरियल है ना, इसको उसने पूरा निकाल दिया. पीएन जंक्शन में पी टाइप मटेरियल को हटा करके, क्योंकि पी टाइप मटेरियल में कौन से मिनॉरिटी चार्जेस होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. होल मेजॉरिटी कैरियर से और इलेक्ट्रॉन्स इसमें मिनॉरिटी कैरियर से. तो इसने क्या किया, पी टाइप मटेरियल से
पी टाइप मटेरियल को निकाल करके उसने रिप्लेस कर दिया विथ अ मेटल। देखें क्या हुआ। तो व्हाट ही डिड, इट इज हाई स्पीड, मैंने पहले तारीफ कर दी जो गलत है, पहले मुझे इसके बारे में बताना चाहिए तो उसके बाद इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। ओके, इट इज हाई स्पीड बट लो वोल्टेज डायोड्स। ओके, it is not similar to p-n junction diodes, ठीक है। It is constructed without p-type material, okay। In the Schottky construction, the p-type material is replaced by a thin layer of metal such as chromium, platinum or tungsten। So what happens, यहाँ पर p जनरल पर्पस डायोड में या जो हाई फास्ट रिकवरी डायोड है, फास्ट रिकवरी डायोड्स है, उसमें P और N मटेरियल है। So this German has removed this metal, this P type material with the metal। अब मेटल में क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल में जो करंट फ्लो होता है, शायद मैंने जो पहली स्लाइड थी उसमें बताया था कि करंट फ्लो इन द कॉपर और द मेटल और द कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं, इसके अंदर मिनॉरिटी चार्जेस हैं ही नहीं। जब मिनॉरिटी चार्जेस इसके अंदर नहीं है तो there will be no flow of the minority charges। Let me explain this one something more। So bottom line, अब तक हमने सिर्फ ये बताया कि Schottky diode is the diode where the p-type material is replaced by the metal, and the metal can be chromium, platinum or tungsten। This is invented by the German scientist W.H. Walter H. Schottky। So the name, so this is the symbol of the Schottky diode। So this is the anode, and which is metal, and the cathode is n-type material। If recall, TRR was due to the minority charges in the PN diodes. Here there is no p-type material, resulting in no minority charges, thus no IRR at all। The Schottky diode is named after German, ये मैंने बता दिया आपको। Here the forward voltage drop, अच्छा अब ये चीज बता दी गई है, ज्यादा हम ये we have to be discuss up to definition and understanding level, not we have to discuss inside the semiconductor physics or the chemistry or the geometry। So here the forward voltage drop is less। अब बता रहे हैं PN junction diode में forward voltage कितना होता है, 0.7 for silicon PN junction diode में, for silicon, and for germanium PN junction diode में germanium के लिए 0.3 voltage है, while across Schottky diode is about 0.15 volt। तो so इसकी जो PN junction की जो वोल्टेज है वो बहुत कम है, 0.15 है, जो कि बहुत कम वोल्ट है। And it's not, this is the disadvantage of this one, but if we make a careful design, so we can get rid of this very low voltage। अच्छा, अब तो क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पर इतने कम क्यों है भाई, ये जो PN जंक्शन में 0.7 है, ओके, यहाँ पर 0.15 की है और लेस देन 0.15, इसलिए यह है कि देखें ये एन टाइप था पी टाइप मटेरियल, तो पी टाइप मटेरियल में वो जो मिनॉरिटी चार्जेस है वो सारे फ्लो करके इस तरफ इधर फ्लो होते हैं, और इसमें जो होल्स है वो इस तरफ फ्लो होते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करके ये बैरियर को वाइड बैरियर बना लेते हैं। जब ये वाइड बैरियर होते हैं, बैरियर की वजह से यहाँ पर वोल्टेज गैप ज्यादा आता है, तो वोल्टेज 0.7, इस गैप को ब्रेक करने के लिए आपको वोल्टेज कितना देना होता है, 0.7 वोल्ट। यहाँ पर देखें मेटल है, अब इनकी जो जंक्शन है ना वो इस वजह से बनती है, पी तो नहीं है, तो हाउ वी कैन मेक अ जंक्शन। इसमें जो मेटल ये आपके एन टाइप मटेरियल है, ठीक है, इसे सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन टाइप, एन डोप मटेरियल इज सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, और यहाँ पे मेटल है। अब मेटल में और इस सेमीकंडक्टर की जो आउटर शेल के जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होते हैं, हर मेटल के, हर सब्सटेंस के आउटर शेल के एनर्जी लेवल डिफरेंट होते हैं। तो इन दोनों की जो आउटर शेल में जो क्लाउड बनते हैं उसकी वजह से जो
एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होते हैं, और वो उस एनर्जी लेवल की वजह से जो वोल्टेज बैरियर वोल्टेज बन रहे हैं वो 0.15, दैट्स व्हाई इट इज वेरी लो। ठीक है। The current in a Schottky is conducted by majority carriers, that is electrons, due to metal and n-type material. Therefore, these do not show the minority carriers. Thus, the charge storage, इसमें क्या होता था, पीएन जंक्शन में यहाँ पर चार्ज स्टोर होते थे, इस जगह चार्ज स्टोर होते थे, और जंक्शन में चार्ज स्टोर होते थे। तो यहाँ पर चार्ज स्टोरेज प्रॉब्लम is eliminated in Schottky diodes. The Schottky diode due to relatively low conduction voltage. यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए? सिर्फ 0.15। और अगर पीएन जंक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए? 0.7। 0.7 इज अ गुड वोल्टेज, क्योंकि इसमें ये है तो बहुत कम, लॉसेस भी इसकी वजह से भी बहुत कम होंगे। 0.7 में बैरियर है, 0.7 में वोल्टेज लॉसेस ज्यादा होंगे, यहाँ पर लॉसेस कम होंगे। लेकिन देयर इज वन ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक है देखें, Schottky diode due to relatively low conduction volt has relatively high leakage current. अब इसमें से लीकेज करंट जब रिवर्स बायस करेंगे, चूंकि यहाँ पर बैरियर वोल्टेज 0.7 नहीं है, बैरियर वोल्टेज बहुत कम है, 0.15 है और लेस है, तो इसकी वजह से जब इस डायोड का रिवर्स बायस करेंगे, इसकी लीकेज करंट ज्यादा है। दिस इज द डिसएडवांटेज। एज अ रिजल्ट, द मैक्सिमम अलाउएबल वोल्टेज इज लिमिटेड टू अबाउट 100 वोल्ट। जब लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट, इस वजह से इसको हम अगर एसी सिग्नल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो शायद 100 वोल्ट से ज्यादा पे हम ऑपरेट नहीं करेंगे। कोई 100 वोल्ट का मतलब है, अगर पॉजिटिव 100 वोल्ट हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन जब नेगेटिव 100 वोल्ट आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, और उसकी लीकेज करंट आम डायोड से लीकेज करंट ज्यादा है। तो इसकी एक लिमिटेशन ये है कि यू कैन नॉट ऑपरेट दिस वन at a greater voltage. It can be useful for low voltage designs, for low voltage converters. Okay. The limitation of Schottky diode are low voltage and high leakage current. अच्छा, अब ये low voltage की वजह से क्या प्रॉब्लम है? 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट देखें बहुत कम वोल्ट होता है। बाज औकात सर्किट के अंदर किसी भी वजह से एरर सिग्नल जनरेट हो सकता है, कोई स्पाइक्स जनरेट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकते हैं, बाय मिस्टेक कोई वोल्टेज इंड्यूस हो सकते हैं, और वो वोल्टेज जो आपका एरर वोल्टेज है या किसी भी वजह से सर्किट में, सराउंडिंग सर्किट में अगर इस वोल्टेज से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये डायोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जबकि आपसे ऑन नहीं करना चाहते। जबकि पीएन जंक्शन डायोड का फायदा यह है कि 0.7 बहुत ज्यादा वोल्टेज है, तो ऐसी खामखा 0.7 इन्वायरमेंट की वजह से बाय मिस्टेक 0.7 वोल्टेज डेवलप नहीं हो सकती, लेकिन 0.5 वोल्ट हो सकता है। ठीक है, ओके। एप्लीकेशंस, these Schottky diodes are widely used in high-speed power converters with low forward voltage and quick recovery time. ठीक है। अच्छा, अब सेकंड जो एडवांस मटेरियल है, मैंने आपको जो 8 और 10 साल पुरानी बात बताई थी, उसमें शायद मैंने आपको तस्करा किया था कि the Infineon developed a diode with silicon carbide material. Silicon carbide. So silicon carbide, SiC diodes. So these are the very efficient. It can be operated at high frequencies, and they are low power losses. Silicon carbide is a new material for power devices. The silicon carbide diodes, for example, manufactured by Infineon, has ultra low losses and high reliability. चूंकि इसके अंदर कार्बाइड इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स काइंड ऑफ मटेरियल मेटल, तो ये इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। So this is the Infineon, and this uses, you can see here, silicon carbide material, Schottky diode, and it can be operated at I think 1200 volt. मुझे शायद करंट सही से याद नहीं आ रहा, maybe the current is 600 ampere or something like this. You can see the data sheet of this one. So
these Schottky diodes, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? नो रिवर्स रिकवरी टाइम, नो रिवर्स रिकवरी टाइम बिकॉज देयर इज नो फ्री मटेरियल, अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, जब इसकी TRR टाइम भी नहीं है तो जाहिर बात है यू कैन रन द frequency at a very high value. So ultra fast switching capability, no temperature influence on switching behavior because of this carbide, silicon carbide. It's a very strong material, or it can bear the voltage, the temperature at a very high. So no temperature influence on switching behavior. क्या करना है हमें? नई स्लाइड स्टार्ट करनी है। लेकिन मैं चाह रहा था किसी कुछ क्वेश्चंस कर लूं। लेट मी आस्क। अब ये क्या है? मुबशरा ज़ैद, आर यू हियर? मुबशरा ज़ैद, साद खान, आपने कहा आप मौजूद हैं। साद खान, साद खान आपने कहा आप मौजूद हैं। आपकी इसका मतलब मैं एब्सेंट लगा दूं। ओके, आपकी एब्सेंट। सीरत बतूल, सीरत बतूल, ओके, आप तो वैसे ही एब्सेंट है मेरे ख्याल में। आगा नबील, यस सर। आगा नबील बताएंगे आज हमने क्या चीजें डिस्कस किया है? सर एक तो हमने पावर डायोड्स के फीचर्स पढ़ा है, और सर स्पीड डायोड्स पढ़ा है, और सर शॉटकी डायोड्स पढ़ा है कि वो हाई स्पीड होते हैं और फॉर लो वोल्टेजेस के लिए यूज होता है, और सर उनके TR कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवादुल हसन, फवादुल हसन गायब है। सैयद वलीद, यस सर। सैयद वलीद आप थोड़ा सा कमेंट्स करेंगे? क्या हो ये शॉर्ट की कितने टाइप्स के डायोड्स हमने पढ़े यहाँ पर? सर हमने पावर डायोड पढ़ा है, स्पीड डायोड पढ़ा है, जनरल पर्पस पावर डायोड है ना? जनरल पर्पस। जी यू सर। कैन से जनरल पर्पस, यानी कि वो रेक्टिफायर भी यूज हो सकता है यस जहाँ सर, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यस सर। और फिर सर हमने शॉटकी डायोड पढ़ा है, और शॉटकी में सर हमने ये पढ़ा है कि उसका ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो थोड़ा लेस होता है, तो वो TRR टाइम हमारा कम कर देता। नहीं, वो है फास्ट रिकवरी डायोड, उसमें जो रिकवरी टाइम है ना वो कम होता है। और जो शॉर्ट की डायोड है, शॉर्ट की डायोड, इसमें तो रिकवरी टाइम है ही नहीं। यस सर, वही। तो ये देखें, इसमें लिखा हुआ है ना, नो रिवर्स रिकवरी टाइम। यस सर। अच्छा, सैयद वलीद आपने जवाब दे दिया। मोहम्मद जहाजेब, आपने भी लास्ट टाइम जवाब दे चुके हैं। सैयदा उरूबा, जो लोग जवाब नहीं देंगे वो एब्सेंट, दे विल मार्क एब्सेंट। जवाब दें लेकिन गलत दें, सही दें, इट्स नॉट द कंसर्न। सैयदा उरूबा इज एब्सेंट। फहद मुख्तार, यस सर। जी, इस वीक नहीं, लास्ट वीक में हमने क्या पढ़ा था TRR टाइम के बारे में? सर मतलब वो बेसिक्स हमने पढ़े थे कि रिकवरी टाइम क्या होता है, एंड मतलब इसकी बेसिक रीजंस क्या तो होती है। रिकवरी टाइम क्यों होता है और कब होता है? सर रिकवरी टाइम इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अब नॉर्मल डायोड की बात करें ना, तो उसमें सर ये होता है, फॉर एग्जांपल एक डायोड है, अब जैसे ही वो डीके, मतलब उसको वो जीरो, उसका करंट जब रीच हो रहा है ना, डीकेज जिसको हम बोलते हैं, डीके कर रहा है, उसका करंट जीरो की तरफ रीच हो रहा है, तो अब क्या है, उसके अंदर कुछ तो स्टोर्ड चार्जेस होंगे ना, अब उसकी वजह से जो है, जब उसका फॉरवर्ड करंट स्टॉप हो जाएगा तो वो रिवर्स में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो फॉर द टाइम फॉरवर्ड जब करंट, वो एक मिनट जस्ट स्टॉप हो इंटरप्ट यू, जाएगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड करंट स्टॉप हो जाएगा तो
तो फिर जो स्टोर्ड चार्जेस उसके अंदर ऑलरेडी हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स जिसको हम कहते हैं, हाँ उसकी वजह सही से वो रिवर्स में कंडक्शन करना शुरू कर देगा बाय इटसेल्फ। हम उसमें कोई अपनी वो नहीं कर रहे, मतलब हम उसको नहीं कुछ कर रहे कंट्रोल, सही है। तो बाय इटसेल्फ वो रिवर्स में कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। फॉर तो जिस टाइम के लिए वो रिवर्स में कंडक्ट करेगा उस टाइम को हम बोलते हैं रिकवरी टाइम। बिल्कुल सही है, बहुत गुड एक्सप्लेनेशन। अच्छा ये आपका क्या नाम था? फहद मुख्तार। जी सर। अच्छा सैफ हसन हुसैन। प्रेजेंट सर। सैफ हुसैन जी बताइए, ये हमने आज के इसमें क्या चीजें हैं? अच्छा इससे पहले ये बताइए कि रिवर्स रिकवरी टाइम ज्यादा होने की वजह से सर्किट ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, सर्किट की क्या कंसर्न है? जैसे हमने यहाँ पर था, अगर आप इफ यू कैन, ये जैसे हमने ये चीजें पढ़ी है, इसमें हमने इस स्लाइड में, अगर आप इफ दिस स्लाइड इज विजिबल टू यू, तो इस स्लाइड में हमने क्या चीज समझने की कोशिश किया? सर रिपीट करिएगा प्लीज। ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, यस सर। यस, इस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया है? जी अदनान खालिद। सर अगर आप जो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो हम 100 के बढ़ा देते हैं तो इसमें आपके पास चांसेस होते हैं सर्किट बर्न आउट के डायोड एंड पर। ये लास्ट में बताइए, ये जो लास्ट वाला है इसमें क्या हो रहा है, कैसे सर्किट बर्न आउट होगा इसमें? ये लास्ट, अगर इफ यू कैन सी माय कर्सर, तो इसमें क्या हो रहा है इस लास्ट वाले में? सर जैसे हमें कहते हैं फ्रीक्वेंसी, हमें जो कहते हैं IF दिया हुआ था वो 5 माइक्रो सेकंड से जैसे ही कम हो गया। IF नहीं, TRR दिया होता है, इट वाज TRR 5 माइक्रोसेकंड था, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि TRR 5 माइक्रोसेकंड था और ये ऑफ टाइम भी 5 माइक्रोसेकंड है, तो 5 माइक्रोसेकंड के लिए इसको ऑफ होना चाहिए था, लेकिन TRR 5 माइक्रोसेकंड की वजह से वो ऑन रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कॉन्स्टेंटली द डायोड विल टर्न ऑन, ऑलवेज डायोड विल टर्न ऑन, क्योंकि इसके बाद फौरन ऑन साइकिल आ जानी है। ऑन साइकिल जब आएगी तो ये 5 सेकंड के लिए, फिर 5 माइक्रोसेकंड के लिए फिर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद मोहम्मद फजील राजा इज एब्सेंट है। शहजाद अहमद, आप प्रेजेंट हो गए? अब तो मैंने एब्सेंट मार्क कर दिया है। ओके फजील राजा बताइए आपने क्या समझा है? सर यही किस बारे में? इस स्लाइड में क्या, इस स्लाइड में ये क्या बताया जा रहा है? व्हाट इज, ये दो वेवफॉर्म क्या बता रहे हैं आप इस स्लाइड में? ये दो वेवफॉर्म, सर शुरू फर्स्ट टू वेवफॉर्म, हाँ फर्स्ट टू वेवफॉर्म जी, व्हाट वी कंक्लूड जी। सर फर्स्ट वाली वेवफॉर्म में बता रही है कि आपके पास जो क्या नाम है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी कम है, सही है। और सर TRR हमारे पास नहीं है, तो डायोड जैसे हमने ऑफ किया फौरन वो ऑफ हो गया। अब जो उससे अगला है सर, उसमें फ्रीक्वेंसी हमने थोड़ी इंक्रीज की है, तो उसकी वजह से क्या नाम है सर हमारे पास TRR आ रहा है। मतलब जैसे हमने क्या नाम है डायोड ऑफ किया तो डायोड फौरन नहीं ऑफ हुआ, थोड़ी देर बाद जाके डायोड ऑफ हुआ। ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा फजील, शहजाद अहमद खान, शहजाद अहमद खान शायद ये एब्सेंट हो गए। हाफिज मोहम्मद हमजा, यस सर प्रेजेंट। जी आप कोई कमेंट करेंगे? आपके लिए दूसरी स्लाइड में सर इसमें जो TRR टाइम है वो 5 माइक्रो सेकंड। ये जो स्लाइड नजर आ रही है ना, इसमें बताएं इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? व्हाट दिस स्लाइड शो? सर ये तो लेक्चर 25 की स्लाइड ओपन है। क्या इसका टाइटल क्या है, क्या समझना चाह रहे हैं इस लेक्चर में? सर इसमें TRR टाइम आपने बताया था, अगर जैसे हमने
प्रीवियस स्लाइड में आपने कहा TRR टाइम हमने 5 माइक्रो सेकंड रखा था, लेकिन सर वो लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा था। सर आपने बताया अगर इसको डीसी डीसी कन्वर्टर में करेंगे वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी हाई होती है, तो ये डायोड वहां पर यूज नहीं कर सकते, वहां पर ये जल जाएगा सर, ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। के बाद मुफ्ती तो है नहीं, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, ओके। रुमैज अली, मोहम्मद मुरसलीन। सर मोहम्मद रिजवान। जी बताइए मोहम्मद रिजवान, पहले बताएं कि ये क्या हमने मुसीबत सर पे बांधी है, क्या हमने ये चीजें। ओके ओके, मोहम्मद रिजवान ये बताइए कि ये 3 डायोड्स के बारे में आप डिफाइन करें। ये जो एक ये डायोड है, ये दूसरा डायोड, तीसरी डायोड, इनको आप डिफाइन करेंगे। व्हाट आर दीस? सर इसमें हमने ये पहले जनरल पर्पस पावर डायोड्स के बारे में बात किया था। उसके अंदर आपका जो पीएन जंक्शन था, मतलब वो पीएन जंक्शन के थ्रू ही बनता था, जिस तरह आप दूसरे मतलब जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं वो सिर्फ क्या है लो फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसीज पे आपके वो क्या है अगर फास्ट रिकवरी उनका टाइम है वो ज़्यादा, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाते हैं। सर फास्ट रिकवरी डायोड में ये होता है कि आपका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है, आपका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़े उनको हाईर फ्रीक्वेंसीज पे आप काम करवा सकते हैं। सर बस शॉर्ट की इतना डायोड में बहुत आपका क्या होता है कि जो पहले जो पीएन जंक्शंस थे वो अब पीएन जंक्शंस नहीं रहते, उसमें आप पी टाइप मटेरियल हटा के आप मेटल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो अब वो मेटल और एन टाइप मटेरियल का जंक्शन, तो अब इसकी वजह से आपका जो TRR टाइम है वो सर इसके अंदर वो टाइम बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है, TRR टाइम। यस यू आर राइट। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं एज अ हिंट बता दूं, although it has many explanations and many reasons, and these are not going to cover in this course, लेकिन मैं आपको इसको मिनिमम बता दूं कि यहाँ पर P और N टाइप मटेरियल होता था। P टाइप मटेरियल में मिनॉरिटी चार्जेस कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो P टाइप मटेरियल यहाँ पर होता था नॉर्मल डायोड में, और इसमें मिनॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता था इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। तो चूंकि पी टाइप मटेरियल्स में मेजॉरिटी तो होल्स हैं और मिनॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मिनॉरिटी चार्जेस जब फ्लो होते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से रिवर्स रिकवरी टाइम बनता था। ठीक है, वन पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। अब चूंकि ये यहाँ पर मेटल आ गया है, तो मेटल में तो भाई इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। इसमें तो जो जो यानी कि क्या कहते हैं इसको, जो फ्री इसकी जो मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड बायस जो मूवमेंट हो रही है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। फॉरवर्ड बायस जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। पीएन मटेरियल में फॉरवर्ड बायस जो वोल्टेज है वो इसके होल्स की फ्लो की वजह से हो रहा था। अब यहाँ पर तो होल्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो भी फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है। और रिवर्स करंट इसलिए नहीं फ्लो हो सकता कि यहाँ पर इसके जो अपोजिट चार्ज है, मिनॉरिटी चार्जेस है, वो नहीं है। ठीक है, समथिंग आई कैन एक्सप्लेन दिस वन, बट इट नीड्स मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर स्टडी। आप चाहें तो आप बाय योर ओन आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, लास्ट सी ब्राउन। यस सर। बस ये आप बता दीजिए कि इसके ड्रॉबैक क्या है। शॉर्ट की डायोड की तो बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बट व्हाट इज द ड्रॉबैक? अच्छा, ड्रॉबैक मैंने पढ़ाया नहीं। ड्रॉबैक है नहीं, ड्रॉबैक मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आई हैव कवर्ड हियर। सर, ये है कि उसका रिवर्स रिकवरी टाइम नहीं है बिल्कुल ही, और ये है कि ये तो ज्यादा अच्छी बात है। दिस इज द गुड थिंग, दिस इज गुड थिंग। इट्स इसका जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर शायद लिखा हुआ है कि ये शॉर्ट की डायोड
due to relatively low conduction voltage, यहाँ पर वोल्टेज 0.15 है, has अच्छा ये बुक की वैल्यू है, so नए जो टेक्नोलॉजीज उसमें महंगा कुछ बहुत है वैल्यू सर। जी, yes, it is also expensive. So this is the another reason, but the technical reason is the Schottky diode due to relatively low conduction volt has relatively high leakage current. क्योंकि इस देखिए यहाँ पर तो 0.7 स्ट्रॉन्ग वोल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाया है, स्ट्रॉन्ग इसने गेट बनाया हुआ है, नो वन कैन पास, बड़े पावरफुल आर्मी यहाँ पर मौजूद है, इसको क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन 0.15 है, ये थोड़ी सी वीक आर्मी लाइक, तो इसमें इजीली मतलब वोल्टेज इंड्यूस हो सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर लीकेज करंट बहुत आता है। दिस इज द मेन रीजन, दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी ऑपरेटेड बियॉन्ड सम स्पेसिफिक हाई वैल्यू, समथिंग लाइक 100 वोल्ट। ठीक है, ओके, क्लास इज ओवर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यू मे आस्क नाउ, I have, otherwise I have to go to the another meeting. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.